शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? श्री महेश जी सोलकर जी उनका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। श्री राम नारायण कक्कड़ जी, मनोहर जी, लूथरा जी, श्री सतपाल जी, गौरव गोयल जी, सन्नी जी, सुभाष वर्मा जी, राजेश गुम्बर जी, मुकेश गुम्बर जी, विक्रांत जी, विनय मित्तल जी, नितिन जी, संदीप डिंगवाला जी, विजय बंसल जी, श्याम सुंदर जी, अशोक गंगा जी, सतीश सुभाष मोंगा जी, राजेश जी, राजेश गदेरी वाले, विक्रम जी समारिया, और भी कोई नाम रहेगा तो माफी चाहूंगा। सबके लिए जोरदार ताली। सब आप अपना समय का कीमती समय निकाल कर आए हैं, बढ़ाइए आपका। और आपसे प्रार्थना है हफ्ते में 15 दिन में महीने में देखो इस गौशाला में आपको बहुत बढ़िया, पर किसी भी गौशाला में आप जाके 1 रुपया रोज निकाले, 1 रुपये से आप 100 रुपये डाल सकते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਲਨੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਮੁੰਸ਼ਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਏ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਲਨੀਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ? ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਹਨ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗੀ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤਾਰਾ ਬਾਬਾ ਕੁਟੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣੂ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं गौ माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सिरसा शहर में बहुत गौशालाएँ हैं और सभी के पास बहुत गौएँ और बहुत शहरवासी सहयोग कर रहे हैं। पर मैं मेरे शहरवासियों से एक अपील करता हूँ कि जैसे हम घर में भी अपने कई बार पुराने टाइम में हम एक रोटी निकालते थे कि गऊँ की रोटी निकलती है, अगर हम एक गऊँ का गल्ला निकाल कर उस गले में डेली रोज़ाना कुछ ना कुछ सहयोग करें, गौशालाओं में भेजें, तो मतलब शहर के सहयोग से भी जितनी, अगर आज हम कहें कि शहर में आपने अभी पूछा महाराज श्री से कि गऊँ हैं, तो गऊँ बहुत है शहर में, लेकिन उसको शहरवासी सहयोग करें। अगर सारे मिलकर हम सहयोग करें तो सारी, क्योंकि देखिए गौशालाएँ चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात। गाँवों में जो लोग सोचते नहीं थे, जो लोग गाँवों के लोग आज तन मन धन से लग रहे हैं गऊँ की सेवा में, शहरवासी भी लगे हुए हैं। लेकिन संस्थाएं कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक गऊँ रखेगी? गऊँ बहुत ज़्यादा हैं और दिन प्रतिदिन और आ जाती है, आसपास के लोग छोड़ जाते हैं। तो मैं मेरे शहरवासियों से यही अपील करता हूँ कि आप अपनी दुकान पे, मकान पे एक गऊँ के नाम का गल्ला रखे, कोई 10 रुपये 50 रुपये रोज़ का एक नियम बनाकर डालें कि पहले हम गऊँ के नाम की एक रोटी निकालते थे, वैसे ही गऊँ के नाम के अगर हम पैसे डालकर कोई भी एक गौशाला में महीने वाले दिन वो पैसे पहुँचाएँ, तो गऊँ का देखो, गऊँ कोई भी गौशाला वाला मना नहीं करता कि मैं गऊँ नहीं लूँगा। हर गौशाला वाला कहता है मेरे पास भेज दो गौशाला, लेकिन मुझे को कुछ चलाने के लिए तो चाहिए ना, तो उसका सहयोग कौन करेगा? सरकार भी कर रही है। सरकार ने एक 40 करोड़ से 400 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका बजट बना दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं मेरे शहरवासियों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गौ माताओं पे ध्यान दें, जैसे अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं वैसे अपनी माँ पे भी ध्यान दें, और एक गल्ला लगाकर कोई 50 रुपये 100 रुपये निकाल कर प्रतिदिन और महीने वाले दिन अगर गौशाला में भेजें तो आपको सड़क पर कोई गौ नज़र नहीं आएगी। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਹੈਗੇ, ਬਲਦ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੱਢਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਵਾਰਿਸ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से उस परमात्मा ने संसार की रचना की, पालना की और फिर संहार किया। परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया, हमारी सौभाग्य की बात है, और उसके साथ साथ मौत भी निश्चित है। परंतु उस परमात्मा की अपार कृपा कि उस भगवान ने हमें जो मानव का, मनुष्य का बीच वाला समय जो है वो भगवान ने हमें समर्पित किया। उस समय को, उस टाइम को हम जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप सब बहुत ही भाग्यशाली हो कि जिस तरह मैं तो आज शायद पहली बार गौशाला के दर्शन किए हैं, और यहाँ के प्रधान जी पवन जी और हमारे बहुत ही प्रिय सेवक सुधीर जी, जो कि गौशाला के बारे में बहुत उपमा महिमा करते रहते हैं कि आप एक बार आओ और गौशाला के दर्शन करो। मैंने कहा कि समय आएगा जरूर आऊंगा। कल कुदरती बात इनसे हुई, कहने लगे आप आना, तो मैंने कहा मैं कल ही आ जाऊँ। तो मेरा मन था यहाँ आने को कि मैं एक दिन जरूर जाऊंगा। तो मैं अभी गेट के अंदर एंट्री की तो वो सामने लिखा हुआ है, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर,
दान करत धन ना घटे कह गए भगत कबीर। तो देखो ये तो प्रत्यक्ष रूप से सभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के दान से ही ये गौशाला चल रही है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको उस भगवान ने, उस परमात्मा ने जन्म मृत्यु के बीच में जो स्थान दिया है उसको आप सफल बना लो। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान इसी तरह परमात्मा आप पे कृपा बनाए रखे और आप इसी तरह सेवा में जुटे रहो। तो गोविंद कांडा जी भी बता रहे हैं कि बहुत सेवा यहाँ दे रहे हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूँ। तो देखो गौ माता की सेवा हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने भी बड़ी मन से सेवा की थी। आज आप लोग भी इस केलिया गौशाला में मन लगाकर सेवा कर रहे हो। यहाँ बहुत अच्छा ये गौशाला का आपने जो उनके रहने के लिए, गौशाला के गौओं के चारे के लिए या फर्श बहुत अच्छा बना हुआ है, या नेचुरली चीजें आप इस गौशाला में देखने को बहुत मिली। तो मैं बहुत, हमें खुशी हुई कि आपने इतनी सुंदर और अच्छी गौशाला बना रखी है। तो देखो आज फ्लड का दौर है, फ्लड आपने देखा यहाँ रतिया एरिया में बहुत बर्बादी हुई है। आपने तो ठीक है नाली के बांध के बीच में जो फसल बर्बाद हुई है, तो देखो इसके लिए भी गौ माता का सहारा हमें हमेशा लेना चाहिए। भगवान है, परमात्मा का सहारा, गौ माता का सहारा। इसके बारे में एक आपको मैं छोटी सी एक बात सुनाता हूँ कि बहुत पुरातन समय की बात है। एक नगरी का राजा था और उस नगरी में एक बिटिया थी। तो वो बिटिया छोटी अवस्था में ही गौओं के प्रति बड़ी उसकी आस्था श्रद्धा थी कि वो सुबह खाने से पहले माता पिता को कहती, कहीं से उसको शिक्षा मिली थी कि गौ माता को पहले फुल्का खिलाए और फिर बाद में खाए। तो वो क्या करती कि वो सुबह खाने से पहले गौ को एक फुल्का खिलाती और फिर आप खाती। इसी तरह वो धीरे धीरे बड़ी होती गई। फिर उसको उसकी शादी हो गई। शादी हुई तो उसका वो काम रूटीन में चलता रहा। फिर उसने सबसे पहले सुबह अपना खाने से पहले गौ माता को खिलाना। तो क्या हुआ, उसकी शादी हो गई, फिर भी वो सबसे पहले गौ को फुल्का खिलाती, उसके बाद आप खाती। इसी तरह उसके बच्चे हो गए, इसी तरह ही ये दौर चलता है। और धीरे धीरे उसके बच्चे जवान हो गए, उनकी शादी हो गई। इसी तरह उसके पोती पोता भी हो गए, नुह भी हो गई। इसी तरह उसने अपना जो रूटीन का जो ये कार्य था वो नहीं छोड़ा। तो देखो क्या हुआ, ये गौ माता की महिमा मैं आपको सुना रहा हूँ कि उस दौर में उस नगरी में फ्लड आ गया। बहुत बाढ़ आई, बहुत वर्षा हुई और वर्षा के कारण राजा ने आदेश दे दिया कि आप जहां जहां आप ऊपर चले जाओ, कहीं कहीं ये ना हो कि आप डूब जाओ परिवार समेत। तो ठीक है, सभी लोग छोड़ के अपने घरों को छोड़कर चले गए। तो क्या हुआ, वो माता कहने लगी कि मैं तो नहीं जाऊंगी, इस गौ माता को आप छोड़ दो, ना तो गौ माता जाएगी और ना ही मैं जाऊंगी। तो क्या हुआ कि उस नगर में बहुत पानी आ गया। उसके बेटा बेटी नौं सारे छोड़ के, पोती पोता सारे छोड़ के, पति की उसकी डेथ हो गई थी, तो वो सभी छोड़ के चले गए। तो क्या हुआ, इतना फ्लड के बावजूद भी जब वो पानी सूखा तो क्या देखा कि उस माता ने सभी को यही बताया कि मेरे यहाँ फ्लड नजदीक ही नहीं आया, क्योंकि मैंने गौ माता की पूछ पकड़ रखी थी। गौ माता की इतनी महिमा थी कि यहाँ हमारे नजदीक फ्लड का कोई नामो निशान नहीं था। इसीलिए गौ माता का हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है। 33 करोड़ देवी देव, एक माता गौ माता की पूजा कर लो तो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे
अच्छे मार्ग पे आप चल रहे हो। जिस तरह गुरबाणी में बताया गया है, सच्चे मार्ग चलते हैं पुस्तक करे जहान। आप सब जितने भी प्रबंधक कमेटी वाले सदस्य हो, आप बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लगन से सेवा कर रहे हो। इसी तरह ही भगवान परमपिता परमात्मा गौ माता आप पे आशीर्वाद बनाए रखे और अपनी सेवा में लगाए रखे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बोलिए गौ माता की जय।